آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ٹی وی اور میں ہوں عبدالرزاق بلوچ۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ سلسلہ جو ہے وہ سنوائیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب بھی لفظ بلوچ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچ بے وفا، بلوچوں نے سسی کے ساتھ وفا نہیں کی، بلوچ بے وفا۔ تو آج ہم آپ کو سسی پنو کا پورا جو واقعہ ہے تاریخ کے حوالے سے وہ بتائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ بلوچوں نے سسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور ہماری جو وفا ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہم آپ کو دکھائیں گے، اور سسی اور پنو کا جو مزار ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو اس سلسلے سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کسی بھی بلوچ بھائی کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو ہماری اس تاریخ کے اوپر کوئی اعتراض ہو یا ان کے پاس کوئی اتھینٹک تاریخ جو ہے وہ اور موجود ہو اور وہ ہمارے اوپر بالکل اعتراضات کر سکتے ہیں، اعتراضات برائے اصلاح جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہمارے اوپر وہ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ تو ہم یار محمد بلیدی صاحب سے آپ کو جو ہے وہ سسی پنو کا جو پورا قصہ ہے تاریخ کے حوالے سے وہ سنواتے ہیں اور آپ کو سسی اور پنو کا مزار جو ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ اور آج امید ہے کہ جو بلوچ قوم کو کہتے ہیں کہ بلوچ بے وفا ہے، تو ان کو یہ میری جو قسط ہے یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ شاید جو تاریخ دانوں نے ان کے سامنے جو چیزیں رکھی ہے اس حوالے سے وہ بلوچوں کو بے وفا کہہ دیتے ہیں، تو یہ کلیئرنس میرے لیے بہت ضروری تھی اور باقی بلوچ قوم کے لیے بھی بے حد ضروری تھی۔ تو آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور سسی اور پنو کی جو قسط ہے اس کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں یار محمد بلیدی بلوچ ڈیلی حاضر ہوتا ہوں بلوچی ہسٹری لے کر بلوچ ٹی وی میں۔ تو دوستو، مجھے پرسنلی اور بلوچ ٹی وی کو کافی ہمارے بلوچ دوستوں نے میسیجز کیے، ٹیکس بھیجے، فون کیے، اور تو ان کی فرمائش یہ تھی کہ پنو کا تو ہمیں پتہ ہے وہ بلوچ ہے، لیکن وہ کون سا بلوچ ہے، سسوئی کون تھی اور اس کا کون سا شہر تھا، پلیز ہم لوگ کو یہ بھی بتا دیجئے۔ تو آج جو دوست بلوچ ٹی وی کو ریکویسٹ کرتے تھے یا مجھے پرسنلی جن دوستوں نے کیا ہے، تو آج میں ان دوستوں کو پرسنلی ریکویسٹ پر اور بلوچ ٹی وی کے میزبان جناب عبدالرزاق صاحب بلوچ کے حکم پر آج میں پنو اور سسوئی کا داستان اٹھانے لگا ہوں۔ اب تھوڑی دیر پہلے میں نے کتابوں سے نکالا ہے، عنوان ہے آج سسوئی اور پنو کی داستان۔ تمام تاریخ دانوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ پہلے میں شروع کرتا ہوں بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس نے اپنی شاعری اور شاہ جو رسالوں میں کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اور دوسرا ہے تاریخ بلوچستان کے منصف رائے بہادر ہتھو رام، جو اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں، 1907 میں یہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد تفت الکرام کے منصف علی کانیا نے بھی انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ تاریخ سندھ کے منصف اعجاز الحق قدوسی بھی سومرہ عہد کے دوسری داستان کے ساتھ سسوئی پنو کا ذکر کیا ہے، اور تاریخ رومان کے منصف ذوالفقار ارشد گیلانی نے بھی بیان کیا ہے۔ تو آج میں ان دوستوں کو بتاتا چلوں کہ سسوئی کا شہر کون سا ہے۔ یہ جتنے میں نے آپ کو نام گنائے ان کے میں نے کتابوں کا مطالعہ کر کے بعد میں بھائیوں کو گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ سسوئی کا اصل شہر کون سا ہے، دوستوں کا پوچھنا۔ یہ سندھ ٹھٹھا قدیم شہر ہے اور اس کے نزدیک بمبھور نامی شہر کے کھنڈرات آج بھی ملتے ہیں، جسے سسوئی کا جنم بھومی کہا جاتا ہے۔ وہاں یہ شہر تھا جو سسوئی اور پنو کی یاد تازی کرتا ہے، اور اس زمانے میں بمبھور تجارتی شہر کہلاتا تھا اور یہ تجارت والے لوگ وہاں آمد رفت ہوتی تھی۔ اور پنو کا شہر کیچ مکران ہے، وہاں ایک قلعہ ہے جس کو پنو کا قلعہ بولا جاتا ہے، اور ان کے بھائیوں کے نام بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے بھائیوں کا نام کیا ہے۔ سسوئی کو کسی جگہ پہ بادشاہ کی بیٹی، تو کہاں دھوبی کی بیٹی، تو کہاں ہندو راجا کی بیٹی۔ اور فاقیہ دوست کی رائے ہے کہ سندھ پر حکومت کرنے والے دلو رام کی رائے کی بیٹی ہے، اور دلو رائے کی حکومت کا وقت یہ بات کرتے ہیں کہ بنو امیہ میں مسلمان کی حکومت، ہندو اپنے علاقے کے گورنر ہوتے تھے اور اپنے علاقے میں خود مختار تھے۔ تو راجہ دلو رائے بھی تھا جو
उस दिन उस ज़माने में ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण आबाद का हाकिम था। उसका वक्त है ये 701 और 750 तक ये बताया जाता है। अली शेर साहब की राय है कि कोई दिलूराम नहीं था। एजाज कुदूसी साहब लिखते हैं कि हैदराबाद और डेरा गाजी खान के जनूब तक दिलू राय की हुकूमत थी, और उसको ये वो उस तरीके से लिखते हैं। फिर एक और साहब लिखते हैं कि भूंगर दोम हनीफ दोम के ज़माने में दिलू राय ने कब्ज़ा किया था। ये जो भूंगर थे ये सुमरो हैं, सुमरो ख़ानदान। भूंगर दोम और हनीफ दोम के वक्त 1301 से और 1315 तक, और सिंध के हुक्मरान थे हनीफ दोम 1315 से लेकर 1333 तक थे। और ये राय है उस ज़माने में कि साहब कराए है। और ये भी है, बात करता है कि अभी किताब, मैं ख़ुद भी किताब पढ़ता हूँ, ये मेरी अपनी राय है कि जो मैंने किताबों में पढ़ा है देखा है, तो पुनू और ये जो ससुई की बात करता है ये सफ़ा हस्ती, इस टाइम तो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। ये इस ज़माने की बात नहीं है जो हमारे दोस्त लिख रहे हैं भूंगर और इसकी हनीफ की, जो सुमरो बिरादरी से उनको मिला रहे हैं और उस ज़माने की वो बात करते हैं। मैं खुद भी इससे इत्तफाक नहीं करता, मैं अपनी बात बताता हूँ। ये बात पहले की है। भंबोर शहर उस वक्त भंबोर शहर कराची से 60 या 65 किलोमीटर के फासले पर हैं, और ज़िला ठट्ठा में भंबोर शहर के खंडरात मौजूद है। और भंबोर शहर का असल नाम देबल था, और भंबोर नामी एक हुक्मरान था, उसके नाम से दारुल हुकूमत बना। राजा के नाम, ये राजा था उस ज़माने में। और ये शहर 6वीं सदी में आबाद हुआ, और 10वीं सदी तक उसका नाम देबल था, और बाद में भंबोर बना। अब बात करते हैं बुज़ुर्ग और शायर जनाब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, जो अपनी शायरी और उसमें लिखते हैं पुनू की। इस तरह बात करता है कि शाह जो रिसालो ये लिखता है कि राजा दिलू राय के ज़माने में उस नहर के किनारे एक ब्राह्मण हिंदू रहता था। उसको कोई औलाद नहीं थी। ब्राह्मण का नाम तानिया और बीवी का नाम मंदरिया सुंदर थी। उनको कोई औलाद नहीं थी। आखिर में एक बच्ची पैदा हुई, और ये उम्र की आखिरी हद थी। और हिंदू के रवाज के मुताबिक नजूमी और ज्योतिषियों से बच्ची जन्म पत्री बनवाते हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो नजूमी थे, उन्होंने बोला कि ये बच्ची बड़ी होकर मुसलमान से शादी करेगी और ये मुसलमान बनेगी। तो वो लोग परेशान रह गए, और कट्टर ब्राह्मण थे, ये उनको बात पसंद नहीं आई। उन्होंने एक संदूक बनवा के, आखिरी ना करने वाला फ़ैसला भी उन्होंने कर लिया। एक संदूक बना के उसको एक नदी में बहा दिया, एक उसको बहा दिया। उस ज़माने में एक धोबी होता था जिसका नाम अत्ता मोहम्मद था। उस धोबी का धोबी घाट होता था, और काफ़ी उसके नौकर चाकर भी होते थे, मालदार था। उसको भी कोई औलाद नहीं थी। उसको भंबोर के लोग लाला जी कहते थे। वो संदूक आके उसको मिली, उसने भी उसको बच्ची को, उस संदूक को जब खोला, धोबियों ने उसको संदूक दे दी। वो जो उसके नौकर चाकर कमाते थे, उसको जब उन्होंने संदूक दे दी तो उन्हें बोला ठीक है जी, मुझे संदूक। जब उसने खोला तो उसे एक बच्ची पड़ी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उस बच्ची का नाम उसने ससुई रख दिया। तो ये बात है जनाब ससुई की, जो जिसने मुनसफ़ ने जिस तरीके से उसको लिखा है। तो आगे चलते हैं कि वहाँ पे एक मकरान से वफ़द आया हुआ था, केच मकरान से। अब इस टाइम वो बड़ी हो गई, उसकी शादी के चक्कर में पड़ गया, तो इसकी शादी में किससे करवाऊँ। तो आगे चलते चलते वहाँ मकरान केच का एक वफ़द आया जो तिजारत करने। उन्होंने देखी वो उस लड़की को, तो वो पूरे भंबोर शहर में ऐसी खूबसूरत कोई लड़की है ही नहीं। तो उसने जाके, उसके उस ज़माने में एक हाकिम होता था, उसका नाम होता था आरी जाम। उसके बेटे का नाम था पुनू, और वो उसके बेटे थे। जाके उस पुनू को बता दिया कि इस भंबोर शहर में ऐसी नौजवान हसीन जमील लड़की है कि पुनू को बात बताते ही पुनू ने अपने वालिद से इजाज़त तलब की कि बराए करम मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि वो वली अहद भी था आरी जाम के बाद। वो हाकिम था या सरदार था, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई उसको हाकिम लिखता है कि वो उस ज़माने में आरी जाम हाकिम था केच मकरान का। उसका किला भी पुनू का वहाँ पे मौजूद है जो उनके नाम से है। तो मैं आप भाइयों को आगे बताता चलूँ
कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने वालिद से इजाज़त ली कि मैं भंबोर जाता हूँ, वहाँ से खुशबू यानी कि उस ज़माने में जो अतर होता था, जो भी खुशबू होती थी वो लेकर भंबोर पहुँचा और वो उसने एक ख़ीमा डाला। वो भंबोर में आया तो काफ़ी लोग उनसे लेने आए, बड़ी रियायत में वो बेच रहा था। उसका कोई ये कारोबार तो नहीं था, वो एक व्यापारी तो नहीं था, लेकिन वो आया था ससुई को देखने के लिए, ससुई को पाने के लिए। जब काफ़ी लड़कियां उधर आई, ससुई भी आ गई। जैसे पन्नू अपने ख़ीमे से निकला, तीसरे दिन ससुई पहुंची। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लिखते हैं कि तीसरे दिन आखिरी पहर में वो अपने ख़ीमे में जाने लगा तो उसको आवाज़ लगाई कि कुछ लड़कियां आई हुई हैं भंबोर शहर की जो आपसे ये ख़रीदने के लिए। तो उस टाइम जनाब पुनल खान बलोच साहिब भी आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने फट उसको देख लिया, ससुई को, ऐसे समझो करंट मिल गया। उसने किसी से ना नाम पूछा ना कोई और बात की, जाके उसको आंखें मिल गई और ससुई की भी आंखें मिल गई कि हाँ ये व्यापारी ठीक है। तो उसने सहेली को बता दिया कि मुझे प्लीज़ इस बंदे से शादी करनी है। तो अभी शादी तो करनी है, लेकिन कैसे शादी करें, यह तो एक दूर का बंदा था। उसने सहेली को बोला कि जाके मेरी अम्मी से बात करो। जाके उसकी वालदा से बात की, जो लाला धोबी होता था अता मोहम्मद, जाके उससे बात की। वो लाला से मशहूर था, लेकिन उसका नाम अता मोहम्मद था धोबी का। उसको जाके उन्होंने बता दिया। उसने बोला कि वो पुनू कौन है, कबीला उसका कौन सा है। तो पुनू ने बोला, उस लड़की ने बोला कि वो धोबी है। आखिरी आके मैसेज उसको दे दिया उसने। आखिर उसको राज़ी भी उसने कर दिया, क्योंकि बात को मैं शार्ट करता चलूँ, क्योंकि इतना बलूच टीवी के पास टाइम नहीं होता। ये कुछ मिनटों में मैं आपको समेट के देता हूँ। तो लाला ने बोला चलो आप धोबी हो, मैं राज़ी हो ही गया हूँ, पहले मुझे कपड़े धो के दिखाओ। जो उसके साथ एक मुलाजिम आया हुआ था उसकी देखभाल करने के लिए, जब वो उसका तजुर्बा तो नहीं था, आधे दिन तक वो देखता रहा कि ये धोबी कैसे कपड़े धोते हैं। जिस कपड़े को उसने पुनू ने हाथ लगा के ऊपर से लगाया तो वो कपड़े टूट गए। उसको जब सेट करके तो उधर उन्होंने कुछ ससुई के मशवरे पर उसने कुछ पैसे भी रख दिए। बाद में 2-3 दिन के बाद वो जो लोग कपड़े लेने आए तो उनसे जनाब लाला धोबी ने मालूम किया कि आपको शिकायत है, कोई नया धोबी हमारे पास आया हुआ है। उसने बोला नहीं जी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसको पैसे मिल गए थे। पुनू वलियात था, एक सरदार का, एक नवाब का, एक बादशाह का बेटा था, पैसों का उसको कोई फिक्र नहीं था। तो पुनू ने लाला धोबी ने ये समझा कि हाँ ये मेरी बिरादरी का बंदा है। आखिर उसको अपने लोग मना करने लगे, जी आप शादी ना करो ना करो। वो वहीं ठहर गया, उनकी शादी हो ही गई बड़े शौन शौकत से, क्योंकि पुनू भी काम नहीं था, लेकिन पुनू के पास इतना माल नहीं था, वो एक सरदार का बेटा था। लेकिन मसला जाके यहाँ तक पहुँचा कि वो वफद चला गया, जाके उसने आरी जाम को बता दिया। आरी जाम वो बीमार हो गया, वो निढाल हो गया। उसने एक बंदा वहाँ से कासिद भेजा, उन कासिद ने उसको आके बता दिया कि जनाब आपका वालिद बहुत बीमार है, बराए करम आप चलें। वो नहीं आया। फिर उसने अपने भाइयों को बोला जी आप जाओ। उसको रात के टाइम आकर उसको ये नहीं बताया कि हम इसको लेके जा रहे हैं। उसको लेके वो उठा के चले गए, सीधा केच मकरान गए। पुनू बीमार हो गया, वहाँ के हकीमों से उन्होंने जाके मालूम किया कि जनाब ये बंदा बीमार है, क्यों क्या है। तो आखिर उन्होंने बोला जी ये कुछ नहीं है, इसको ये बीमार नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो उसे मालूम करने लगा आरी जाम क्या मसला है। तो उन्हें फरमाया जी मैं ससुई के पास जाना चाहता हूँ। तो उसने भाइयों को भी साथ मिला लिया, उसको लेकर आए। वो जब वहाँ पे पहुँचे भंबोर में, तो भंबोर में उन्होंने ये उसको नहीं बताया कि क्या मसला है क्या। जब उन्होंने पता किया कि वो एक धोबिन है और ये बड़ा शान शौकत वाला बंदा है, लेकिन पुनः भंबोर में धोबी कहलाता था कि मैं धोबी हूँ, क्योंकि इश्क की कोई ज़ात पात नहीं होती। रात के टाइम उसको वो अगवा कर, नहीं वो साथ नहीं आए थे, साथ नहीं आए थे, एक नौकर चाकर आया था जो उसकी देखभाल कर रहा था। तो उसने देखभाल के बाद उसने ये भी बोला था कि आप ये मेले कपड़े धो रहे हो, कहाँ आप जाम पुनल आरी के बेटे और कहाँ ये धोबी। तो उन्हें बोला आप चुप हो जाओ। बाद में उसने अपने बेटों को भेजा, उनने कोई उसको अंत नहीं दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रात के टाइम उसको उठा के ले गए। तो बाद में वो जब केच मकरान पहुँच गए तो ससुई ने भी फैसला कर लिया कि मुझे भी अभी जाम को ढूंढना है और पुनू को ढूंढना है। वो भी निकली वहाँ से प्यादल बड़े पहाड़ों का सफ़र करते 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 एक बंदा आगे मिला, जो बंदा तो नहीं था, भेड़िया की शक्ल में। उनकी नीयत कुछ ख़राब थी। वहाँ वो बैठ गया, उन्हें बोला खाना पीना दे दो मुझे कोई, क्योंकि काफ़ी अरसे की प्यासी भूखी थी। तो वहाँ उनकी वो जैसे वो गया रोटी लेने के लिए, तो उसने अपने खाल के अकबर से अपील की कि मुझे इधर ही बस जगह दे दे। तो वो खाल के अकबर के हुक्म से जगह ज़मीन ने जगह दी, वो नीचे चली गई। पुनू को भी आखिर में इजाज़त मिल गई। जब अपने वालिद से उसने इजाज़त ले ली तो पुनू भी जब आया, वो ताज़ी कब्र थी, वहाँ मालूम करने लगा। उसने भी हाथ उठाए, अपने खाल के अकबर को कहा कि मुझे भी इसी जगह पे दे दो। लेकिन ज़िंदा चली गई थी ससुई भी, तो ज़िंदा चला गया था उस कब्र में पुनू भी।
तो एक मुल्तान का एक शहंशाह होता था, एक बुज़ुर्ग होता था, जो वो बड़ा तय सफ़र करके वो वहाँ आया था कि ज़िंदा कैसे मोहब्बत का मिसाल है। हम बलोच ताकतवर के साथ, जंगजू के साथ हम मोहब्बत करने वाले भी हैं, इश्क करने वाले भी हैं। तो जनाब यह है जनाब जाम मोहम्मद पुनहल खान होत बलोच की कहानी। तो इंशाअल्लाह ये बात बहुत लंबी है, मैं काफ़ी टाइम ले गया हूँ, तो इंशाअल्लाह अगली बारी कुछ आप भाइयों को गोश गुजार करता रहूँगा। जो मैंने 4, 5, 6 किताबों से जो कुछ निकाली हैं, जो उनके किताबों के जो राइटर हैं, जो मुनसफ़ हैं, उनकी राय में आज आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन मैं ज़्यादातर मुतफ़िक़ पर्सनल पे जो मैं मुतफ़िक़ हूं वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह से हूं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हस्ती है जो सिंध में है, मेरे ख्याल में शायद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के करीब उसकी मज़ार मुबारक है। तो वो एक शायर भी था, तो एक बुज़ुर्ग था। मेहरबानी।